important historic relic is going to come back to India, to Maharashtra, the land where Chhatrapati Shivaji Maharaj stories are engraved in each and every stone. The tiger claws or the Vaghnakha which Chhatrapati Shivaji Maharaj used in order to kill Afzal Khan will finally be handed over back to India. An MOU is expected to be signed on the 2nd of October this year between the Maharashtra government and the Victoria and Albert Museum in London. A 3-member team from Maharashtra consisting of Maharashtra's Cultural Affairs Minister Sudhir Mungantiwar and 2 others is going to London by 1st of October, where the MOU is going to be signed. Now this comes decades after Maharashtra government has been trying unsuccessfully to get this relic back. Remember, this process had started decades ago when year after year Maharashtra government wrote to the British government asking them to hand over the tiger claws back. There was a time when it was even sought on loan. There were conditions that were put saying that there was strict security that will have to be put around it. After years of efforts now, finally the tiger claws will be returned to Maharashtra. It is expected that these tiger claws will be kept at Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum in Mumbai. This in itself is a huge shot in the arm. While politically it will have different ramifications, it's a huge news for every person, particularly every Maharashtrian who has grown up listening to the stories of Valor of Chhatrapati Shivaji Maharaj. These tiger claws are currently at the Victoria and Albert Museum in London, and clearly at a time when the elections are not far away, this acquisition by the Maharashtra government will be a shot in the arm for the ruling parties, particularly at a time when all politics in Maharashtra goes ahead with the name of Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose name has been appropriated by several political parties. At a time when the elections are around the corner, this will clearly be used as a massive brownie point by the government. So at a time when this news comes, we are expecting that the tiger claws will be returned to Maharashtra by November this year. The MOU is slated to be signed only in October. The Minister of Maharashtra State Cultural Affairs, Sudhir Mungantiwar, while giving information about this, has said that efforts are on to also pursue the British government to not just hand over other historic relics, including a historic sword of Chhatrapati Shivaji Maharaj, but also to request the Prime Minister of UK to personally come over to India in November to hand over these tiger claws to Prime Minister Narendra Modi here in Mumbai at the gateway of India. How that plan goes is something there is no confirmation about, but there is a great sense of joy and pride as the tiger claws, Chhatrapati Shivaji Maharaj's tiger claws, which he used to finish off Afzal Khan, are going to be returned back to India. हीरे रत्न मानिक मोती उसे जड़े हुए हैं। वो पूजा की तलवार थी। विजयादशमी के समय वो उसकी पूजा की जाती थी। वो अभी अंग्रेजों के पास है। तो हमने तय किया वाघनक और जगदम्बा तलवार लगाने की। वाघनक के लिए तो हमारा अभी MOU हो रहा है। नवंबर में जब शिव प्रताप दिवस होता है, नवंबर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान के पेट से अतड़ी निकाली थी, तो नवंबर में वाघनक गाएंगे। और जगदम्बा तलवार के लिए कोई टेक्निकल 1-2 छोटे मुद्दे उपस्थित हुए हैं हमारे चर्चा में, तो वो भी हम सुलझाएंगे। मेरा विश्वास है हमारे साथ, महाराष्ट्र के साथ और महाराष्ट्र की जनता के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद है। हम इसमें कामयाब होंगे और महाराष्ट्र में कई ऐसे बातों का हम निर्माण कर रहे हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वीरता को, पराक्रम के विचारों को इस महाराष्ट्र के भूमि के हर व्यक्ति तक, हर शिव भक्त तक पहुंचाए। हमने 100 से ज्यादा कार्यक्रमों का नियोजन किया है। जैसे 12 पोस्ट टिकट निकालने का कार्यक्रम है, जगह जगह में जानता राजा होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के चित्रपट के उत्सव हो गए, कौन बनेगा करोड़पति के आधार पर छत्रपति महाराज पर कार्यक्रम हम कर रहे हैं कि स्कूल तक। हमारी इच्छा ये है विश्व तक,
विश्व के हर देश तक, हमारे देश के हर राज्य तक, हर राज्य के जिले तक, जिले से तालुका तक, तालुका से गांव तक, गांव से जन जन के मन तक, और हर घर के मेरे माँ बहनों तक, हर मेरे गर्भवती माता तक और उसके गर्भ तक छत्रपति शिवाजी महाराज का विचार हमें पहुंचाना है। उसकी योजना हम बना में रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, अभी लंदन जाने की तैयारी आपकी जोरों से चल रही है, कब जा रहे हैं? एमओयू कब साइन होगा और वहां से वापस कब आएंगे? आपने कहा नवंबर में तो वागनक यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन इस एमओयू के लिए आप लंदन कब जा रहे हैं? 1 अक्टूबर के रात को, यानी 2 तारीख के अक्टूबर के सवेरे 1:50 पे ब्रिटिश एयरवेज के फ्लाइट से हम जा रहे हैं। 2 तारीख को 7 बजे हम पहुंचेंगे। 3 तारीख को हमारा एमओयू है और हम ये कोशिश कर रहे हैं, उसमें यश आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर मेरी एक दिल से इच्छा है, जो मैंने मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा की है। हम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को टाइम हमने मांगा है, देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक। हमने उनको रिक्वेस्ट करनी है कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर वो वाघनक लेके गेटवे ऑफ इंडिया पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी या अमित भाई इनको वो सौंपे, क्योंकि उन्होंने हमें कंडीशन डाली है कि आप गांव-गांव वो लेके घूम नहीं सकते, तो हमें बाजू के ही छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम में वो रखना है। उनके साथ वो टाइप है, तो वहां हम रखेंगे। वहां पे हम लाइट एंड साउंड कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जब बच्चों के टूर आएंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स के टूर वहां आएंगे, तो साल भर वो लाइट एंड साउंड से वो समय कैसा हो सकता है, वो सारा लाइट एंड साउंड से हम खड़ा करने की कोशिश है। सुनक साहब ने टाइम दिया तो ठीक है, नहीं तो हम नवंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी, देवेंद्र जी से मेरी परसों बात हुई, सीएम साहब से बात हुई, हम लाते समय एमओयू के समय मैं खुद जा रहा हूं और मैंने सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की, वो समय में वहां पे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और कोई मीटिंगों के लिए है, तो उन्होंने तुरंत सम्मति दी कि एमओयू के समय वो खुद मुख्यमंत्री महोदय भी रहेंगे। और अल्बर्ट म्यूजियम ने क्या क्या कंडीशंस डाली हैं, ये जो हैंडओवर होने जा रहा है इसके बारे में? एक प्रमुख कंडीशन, जैसा मैंने बात, सिक्योरिटी, और दूसरी आप पूरे ऐसा रास्ते पे घुमा नहीं सकेंगे बस। तो बाकी तो एमओयू में देखो, हमारे लिए वाघनक महत्वपूर्ण है। वो देखने के बाद आंखों से ऊर्जा जाएगी हृदय तक, और हृदय की ऊर्जा हाथों से जब जाएगी तो आत्मनिर्भर भारत, वसुधैव कुटुंबकम भारत, ये हमारा जो लक्ष्य है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों में वो ताकत है, शक्ति है, ऊर्जा है, एनर्जी है। कोई टॉनिक की आवश्यकता नहीं है। ये ऊर्जा ही हमारे देश के शिव भक्तों को आगे ले जाएगी। और हमने एक पोर्टल बनाने का निर्णय किया है, जिसमें विश्व के 1 कोटि शिव भक्त उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस विचारों पे एक कदम क्यों ना हो आगे जाएंगे। बेस्ट विशेष आपको इस लंदन ट्रिप के लिए। सुधीर भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद CNN न्यूज 18 से बात करने के लिए। तो दिस इज बिग न्यूज, फाइनली द टाइगर क्लॉज coming back to Maharashtra, MOU to be signed by the minister by the end of this month. He is going to go in October to London for the same.